Hello everyone, welcome back. In the previous video, we have discussed about the conditional rendering. In this video, we will talk about the destructuring of props and state. So let us try to understand that what is a destructuring. So actually the destructuring is the feature of JavaScript that gives us the facility to extract some data from the given array or object. This video is divided into two parts. The first of all, we will try to understand the destructuring of props with the help of the functional component, and the second half we will talk about the destructuring of props as well as the states related to the class component. और इसको implement करने के लिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं functional component का example. So this is the code I have used in the previous video. So let me quickly comment it out and create another file for the functional component. So here I am taking the example of functional component. I am taking the name here is studentinfo.jsx. And here I am creating the functional component, and let me quickly import it into our app. The student info. Now let me quickly show you that what is the output. So we have got the result student info. अब यहाँ से हम लोग एक प्रॉपर्टीज पास करते हैं और रिसीव करेंगे चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर में, राइट? जो चाइल्ड कंपोनेंट हम लोगों ने बनाया है यहाँ पे स्टूडेंट इन्फो, तो यहाँ से हम लोग अभी डाल देते हैं सपोज यूनेम, एंड द यूनेम इज सपोज रिएक्ट. एंड अनदर प्रॉपर्टीज ऑल्सो आई एम ट्राइंग टू सेंड हियर इज दैट the version and the version is suppose 18. अब इस दोनों प्रॉप्स को हम यहाँ पे रिसीव करना चाहते हैं. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे इसको कि प्रॉप्स के अंदर रिसीव करते थे, और प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर में ये दोनों प्रॉपर्टीज हमारा रिसीव हो जाएगा, राइट? अगर आप इसको देखना चाहते हो तो यहाँ पे पहले आप console.log and then display the props, right? And see the result and go to the inspect and go to the console. We have got the object and here is the uname and version, right? अब यहाँ पे अगर मैं इसको destructure करना चाहता हूँ तो कैसे destructure करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं const and put the curly braces sign, and inside this curly braces we have to receive these two properties. And the properties name is uname and version. तो अभी यहाँ पे जो हम लोगों ने यूज किया है प्रॉपर्टीज, वही नेम यहाँ पे हम लोगों को देना है. तो फर्स्ट वन इज द यूनेम एंड द सेकेंड वन इज द वर्जन, एंड वी हैव टू एक्सट्रैक्ट दिस डेटा फ्रॉम द प्रॉप्स, राइट? अब हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को अगर यहाँ पे शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं कि यूजर नेम इज uname and version is, directly we can use the variable name as version, and see the result. We have got here the user name is react and the version is 18, right? तो ये तो एक हम लोगों का प्रोसेस हो गया जिसके थ्रू हम लोग प्रॉप्स के अंदर से ये दोनों डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया, राइट? अब जो एक्सट्रैक्ट करेंगे उसमें से अगर हम चाहते हैं कि केवल मुझे यूनेम चाहिए और वर्जन नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि इस वर्जन को यहाँ से रिमूव कर दो, और यहाँ पे अब मुझे वर्जन मिलेगा नहीं तो यहाँ से मैं वर्जन हटा देता हूँ, राइट? और यहाँ पे हम लोग अभी ब्लैंक छोड़ देते हैं, राइट? और अभी देखते हैं हमारे पास वर्जन कुछ नहीं है, बट हम लोगों को यूनेम मिल रहा है रिएक्ट. And the next point you remember here is that we have taken the first properties as uname and the second properties is version. लेकिन आप यहाँ पे अगर लिखना चाहो कि पहले हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं version and then कॉमा करके uname डालते हैं, तब भी हमारा version और props दोनों रिसीव हो जाएगा. तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान रखना है कि कोई भी सीक्वेंस में अगर हम लोग इस डेटा को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करते हैं तभी भी हमारा डेटा यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा. और यहाँ पे आप देख लो इसको लिख करके कि यहाँ आता है कि नहीं. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, वर्जन. सो वी विल गेट हियर द वर्जन नेम ऑल्सो.
So we have got the version 18, right? And the next process of the destructuring is directly we can write over here, right? यहाँ पे हम लोगों को props नहीं लिख करके अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मुझे uname रिसीव करना है और version रिसीव करना है. So there is no props right now, so let me remove this also and see the output. So we have got the same result. अगर हम लोग destructuring नहीं करते तो यहाँ पे हम लोगों को एक props के अंदर रिसीव करना होता था, और अगर हम यहाँ पे props को रिसीव किए तो uname हमको डायरेक्टली नहीं मिलता था, तो यहाँ पे मुझे यूज करना पड़ता था props डॉट uname, और यहाँ पे हम लोग को करना पड़ता था props डॉट version, राइट? और इससे क्या होता था कि मुझे बार बार यूज करना पड़ता था props, राइट? तो रिजल्ट तो सेम आएगा, लेकिन जब आप कोड लिखोगे तो थोड़ा सा आपका कोड बल्कि नजर आएगा, राइट? तो इस कोड को क्लीनर करने के लिए अगर आप चाहते हो कि डायरेक्टली मुझे यूनेम यूज करना है और वर्जन यूज करना है तो आप destructure यूज करो, राइट? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट यू शुड रिमेंबर हियर इज दैट कि यहाँ पे जो हमने डाला है यूनेम और यहाँ पे हमने डाला वर्जन, सो सेम प्रॉपर्टीज यू हैव टू राइट ओवर हियर, अदरवाइज वो वैल्यू हमारा रिसीव नहीं होगा यहाँ पे. जैसे यहाँ पे हमने लिया यूनेम, और अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ यूनेम 1 और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ यूनेम 1, तो अभी हम लोगों को यूनेम में कोई डेटा यहाँ पे रिसीव नहीं होगा. तो आप देखो यूजर नेम इज एंड देन इट गिव्स ब्लैंक बिकॉज इट वाज अनडिफाइंड, राइट? आप अगर यहाँ पे देखना चाहते हो कि यूनेम क्या आया है तो आप कंसोल करके चेक कर सकते हो कि आपके पास जो यूनेम 1 है वो यूनेम 1 क्या प्रिंट कर रहा है, राइट? सो गो टू द इंस्पेक्ट and check the console that you have got the undefined. Okay, so clear it out and refresh the page so that you will see here that you are getting undefined, right? तो यहाँ पे हम लोगों को एक पॉइंट याद रखना है कि जो भी हम लोग यहाँ से प्रॉपर्टीज पास करेंगे, सेम प्रॉपर्टीज यहाँ destructuring के टाइम में हम लोगों को देना पड़ेगा, otherwise it will not be received. All right. Now I am going to take the example of the class component, and in the class component we will try to destructure the props as well as the state. So let me quickly create one class component inside the same student info, and here is our class, and I'm writing the class name as the student details and extend here the react dot component, and inside this class we have to use one render function, and inside the render we have to receive that properties. So I am writing here that return, and inside return I am writing here the h1, and this is the class component, and make it export so that we can use it in the app.js. So write here the export and then use it inside the app.js, और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, तो स्टूडेंट डिटेल को यूज कर लेते हैं यहाँ पे. सो स्टूडेंट डिटेल्स and see the output first. So we have got the class component, right? Now pass the props here inside the student details. So I am writing here the user, and the user is suppose Aditya, and here is the role, and the role is suppose 200, right? And I want to receive these props in a class component. अब यहाँ पे हम लोगों को जो props receive करना होता है उसको हम लोग यूज करते हैं this dot props के अंदर. So inside the render function let me create the destructuring process, and here I am taking the const and receive the properties. The properties is user and role. So here is the user, and the second properties is role, and then there is this dot props. Now we have to write here the div
because we have to return a single component from this JSX and put inside the div. Here is our division. Message is class component, and inside this we are creating one paragraph, and inside this paragraph I'm trying to write here the user, and the user is the user, and role is equals to the role. And let me show you that we have got the result Aditya and role is 200, right? और जो डीस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस है, जैसा हम लोगों ने फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर में यूज किया था कि आप इसके ऑर्डर पे मत जाओ, आप रोल को पहले भी लिख सकते हो, यूजर को बाद में भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ से यूजर को उठा करके और रोल के बाद डाल देता हूँ, राइट, और यहाँ से हम लोग हटा लेते हैं, फिर भी हमारे आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, राइट। लेकिन यहाँ पे फिर से हम लोगों को ध्यान रखना क्या है कि जो भी प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, जैसे रोल यूज किया और यूजर यूज किया, तो यहाँ पे भी मुझे वो सेम नेम यूज करना है, अदरवाइज द वैल्यू विल नॉट बी रिसीव्ड, राइट। सो दिस इज द destructuring ऑफ द props, एंड नाउ आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट द destructuring ऑफ द स्टेट्स। और स्टेट्स बनाने के लिए हम लोग पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, आर const, and inside this state we are going to take the properties of the student details like semester, and the semester I am taking here is suppose 4, and another one I am taking here is fee, and the fee is suppose 5600. अब इस स्टेट के अंदर से मुझे जो प्रॉपर्टीज मिला है सेमेस्टर और फीस, उसको मुझे एक्सट्रैक्ट करना है और यहाँ पे JSX एलिमेंट के अंदर में रेंडर करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक फिर से पैराग्राफ क्रिएट कर लेता हूँ, और इस पैराग्राफ के अंदर में मैं चाहता हूँ कि इस सेमेस्टर और फी को प्रिंट करूँ। एक तो प्रोसेस है कि आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो कि आपका सेमेस्टर कितना आना चाहिए, तो आप जैसे यूज करते थे दिस डॉट स्टेट डॉट सेमेस्टर, राइट, तो आपको यहाँ पे सेमेस्टर मिल जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि ये बार बार दिस डॉट स्टेट लिखना पड़े, ओके। तो मैं यहाँ पे उसको डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ कि const, and here is our semester, and the second one is fee, and then this dot state, right। तो this dot state के अंदर हमारे पास क्या है, सेमेस्टर है और फी है, उसमें से सेमेस्टर इस सेमेस्टर के पास जाएगा और ये फी इस फी के पास आएगा, राइट। तो अब मुझे यहाँ पे दिस डॉट स्टेट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं सेमेस्टर and we will get here the same result, right। अब मुझे यहाँ से अगर यूज करना हो कि फी क्या है, तो मैं इसके साइड में यहाँ पे फी भी प्रिंट कर लेता हूँ कि फी ऑफ स्टूडेंट इज फी, राइट, and we will get here the fee is 5600. So in this video we have learned about the destructuring of props with the help of the functional component as well as in the class component, and inside the class component also we have restructured the state. So I hope आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग props को और state को destructure करते हैं, right। और destructure करने के लिए जो हम लोगों ने यूज किया उसमें functional component का भी यूज किया और क्लास कंपोनेंट का भी यूज किया। तो क्लास कंपोनेंट के अंदर में हम लोगों ने डीस्ट्रक्चर किया है प्रॉप्स को भी और स्टेट को भी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला होगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।